नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। बासन अंकल के बिहाफ पे एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम के बिहाफ पे आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, we are gathered here today for the 27th session of book reading of Royal Uncle, Guruji Life and Spiritualism. Today we are going to continue with chapter 11, The Spiritual Essence of Guruji, pages 275 to 284. For the session today, we have guests we have Usha Singh Aunty, who has joined us as reader cum analyst. We welcome you, Aunty. She will be accompanied by Gopal Sethi Uncle and, of course, Royal Uncle as interventionist for the session. We welcome you, Uncle. Sangaji, I will quickly give you a brief introduction of the guests. Usha Singh Aunty and her family were blessed immensely by our revered Guruji when he was in physical form in Empire Estate. It was their daughter who was cured of chronic asthma when they were in Singapore. With Guruji's blessings, they moved to USA and since then are in continuous seva of propagating the glory of Guruji in Seattle, USA. We welcome you, Auntie. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji, Auntie. Coming to Gopal Sethi Uncle. Gopal Sethi Uncle, an ardent follower of Guruji, came into Guruji's Sharan in this life in early 2000. Behind his excellent conducting of erudite satsangs in various platforms, Gopal Uncle's educational and professional background comes handy. He is a graduate in commerce and an MBA. He served in various capacities in apparel and textile sector in India, Bangladesh, and Hong Kong. His latest position was Director of Finance and Operations. Gopal Sethi Uncle is also a motivational speaker. We welcome you, Uncle. Jai Guruji. Thank you so much. Thank you so much, Auntie. Coming to our author, Chapelendra Royal Uncle. In the previous sessions, the author has been duly introduced. Nevertheless, for the Sangat who have joined for the first time and for future Sangat and non-Sangat, we will give a brief introduction of the author. Dr. Chapelendra Roy, called Rahul by Guruji, author of the book Guruji, Life and Spiritualism, came to Guruji's fold during his Jalandhar days. Dr. Roy, who superannuated as Secretary to Government of India, is presently member Central Administrative Tribunal in the Principal Bench at Delhi. He is an officer of the Indian Administrative Service of 1985 batch, belonging to the Punjab cadre. He has served both with the state government of Punjab and the central government. Dr. Roy has written 3 books and published several articles in reputed journals. We welcome you, Uncle. Without taking much time, I would like Usha Singh Aunty, I would request her, Aunty, please commence the session. Thank you. Jai Guruji, thank you so much for multilingual Zoom platform for giving me this opportunity to be a reader on this beautiful book that Rahul has written with so much love and devotion and so much knowledge. Guruji, Life and Spiritualism. Actually, to tell you the truth, once we start reading it, those who have been with Guruji, we can feel that we are right there with Guruji in his presence, because everything that he has written, it vibrates. You can feel the presence of everything happening, and with so much knowledge about each and everything, whichever topic he has written about.
As you have seen, we almost was the end of this big, beautiful book, and beautiful pictures of Guruji. Thank you so much, Rahul, and it is very nostalgic to go through this book because when we all used to be sitting there at Empire State with Guruji, all these spaces we had seen, but we never interacted with each other. So it is thanks to this platform that is getting each one of us together who had spent some time with Guruji at Empire State. And it feels like Guruji is present and we all are sitting together just like in Empire State. And I hope Guruji just because in front of Guruji, it was very hard to even utter a single word. The presence, the aura of Guru is so overpowering that actually you forget everything. There's no need of any words. You just go inward in complete silence. So Guruji Maharaj को बहुत धन्यवाद देते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी वजह से ही हम सारे जुड़े हैं, उनकी वजह से ही ये बुक लिखी गई है, और he is the prime factor, and it's very hard to even speak a word about Guruji. So I will focus more on this book and what I understand reading all these pages and understanding what Raul has put so beautifully. So Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. As I always say, Guruji, agar koi त्रुटि हो मेरे वाक्य से, so क्षमा करिएगा, और संगत जी आप सब भी. And especially to Raul, if I do any injustice to your beautiful book, just bear with me. So I will be speaking more in Hindi also, because there are a lot of people all over the world who will be hearing this later or have joined. कई बार लोग कहते हैं आंटी हिंदी में बोला करिए तो हम सब ठीक से समझ पाए. So I'll try to have a mixture of both Hindi and English, because this book is in English. So थोड़ी चीजें इसमें से लेकर के what Raul has defined is about, and as you know, these pages that I have to read, that has been already been being given those pages, 275 to 284. So it starts with the interreligious harmony, and the author here has also talked about the philosophies of Saint Kabir and Guru Nanak, and what we had all learned sitting there with Guruji, just observing how Guruji used to conduct the satsang there, and so many different sangat from different faith used to come there, and as a newcomer in 1998, when Guruji जब उन्होंने अपने चरण शरण में बुलाया, और I still remember, it is very close to my heart because almost December 28th, and that was the day Guruji called us in his sharan. It was 1998, and it was a Thursday that time. So just as a novice sitting there and looking around, because I didn't understand anything. And one thing which I am reading right here is interreligious harmony, and that was exactly what I looked around, and different
religion के लोग मेरे पास, I remember two young girls who were Muslim, and there was one auntie, she was a Christian, and I was not Sikh. So there were a lot of people who came from different religion, and just sitting together. And even though I didn't understand anything about Shabbat at that time, but it was just getting together everything. और जैसे कि संत कबीर के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है कितनी अच्छी तरह से कि the key feature of the philosophies of Sant Kabir and Guru Nanak, it resonates with the great Indian spiritual tradition of the universal God. God does not belong to any particular community or religion. He is for all human beings. Guruji's spiritualism reiterates this universal spiritualism. It is up to the individuals or communities to ascribe names and follow paths and suitable to them to reach God, realize God, and love God and God's creation. And actually, this is the essence of Guruji that got reflected in the diversity of his followers. और उनके फॉलोअर्स तो डिफरेंट कम्युनिटी से, जैसे मैंने कहा कि किस तरह से वहां आते थे, और बेसिकली इट इज जस्ट the oneness of God, even though सेंट कबीर, जैसे संत कबीर का दोहा है कि सब में एक, कहते हैं कि उसको जो he was totally against all the idol worship or spiritual dogmas or finding God in simple, honest human heart. And that was exactly what Guruji used to just observing. Guruji कोई भी किसी भी अपनी संगत को कभी नहीं कहते थे कि तुम इतने सुबह उठ के पाठ करो, या कभी ये नहीं कहते थे कि यू हैव टू डू दिस और दैट, और जाके मंदिर में ये करो. Basically what it meant, just with my thought process, what I experienced, what I have by observing there, is that Guruji ka, he let his sangat free. All this time we were bound by our own thought patterns. By talking about me, I would say that I had this, my whole concept of religion and spiritualism was completely different before going to Guruji. And Guruji ne usko ekdam ulta kar diya. That's what I thought at that time. I used to think कि जो इस पाथ पे जाते हैं उनको बहुत ही शांत रहना चाहिए, और उनको मतलब ज्यादा चुप रहना चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए, और उनको सिंपल कपड़े पहनने चाहिए, और पूजा करनी चाहिए. ये बिकॉज आई जस्ट यूज्ड टू डू द part and puja. My whole thing was toward religion, about how to do the deity worship and things like that. व्रत करना, पूजा करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना. पर गुरुजी के पास आकर के what I realized that he wanted us to go beyond that. Maybe in the beginning we all go through that different steps, and once you reach your guru, then he starts taking you towards spiritualism, that is going inward. And that is what I learned the most, my own personal experience, and acceptance of everybody. Everybody is equal. Guruji के यहाँ सारी संगत एक साथ वहां बैठती थी, और
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको जमीन में बैठना होता था। और सबका कोई वहाँ चाहे वो अ, इतने बड़े कोई बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो या डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड में हो, एवरीबडी वाज ट्रीटेड द सेम। सबको वही चाय प्रसाद उसमें मिलती थी, सबको वहां पे लंगर एक साथ बैठ करके 4 लोग एक साथ खाते थे। और वैसे ही बाहर जाके सबको हाथ धोना होता था। और गुरुजी की जो मौज होती थी, वो अपने आप जिससे बात करना होता था उससे वो बात करते थे। और कोई भी वहां बात नहीं कर सकता था। वी ऑल वर सो टेकन इन ऑ विद गुरुजी दैट शब्द ही नहीं निकलते थे। सो ऐसे ही बैठ करके बेसिकली by observing everything we learn the most. Actually I only learn by observing everything कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड उसी तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस था कि एक थाली में 4 लोग बैठ करके कैसे शेयर करते हैं, that was just the coming together like a communion food when we all sit together and share that is, it takes you to a different level. आपका ईगो वहां खत्म हो जाता है। आपका जो आप सोचते हैं कि हम ये हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है कभी कभी वो उजागर हो जाती है कि हम ये हैं, हम वो हैं। और वहां पे तो आपका ड्राइवर भी वहां बैठ सकता है, खाता है आपके साथ, या कोई भी हो जिसको आप सोचें कि अरे आई डोंट वांट टू सिट विद दिस पर्सन। सो दिस वाज व्हाट द होल harmony of getting people together from different strata of life. And that was the first step of learning that we all are one. एक जैसे एक ओमकार है, वैसे हम सारे उन्हीं के ही ज्योत हैं, उन्हीं की लाइट हैं। And that was my first learning of Guruji, that when I was reading this interreligious harmony, and that was exactly what I felt. That it doesn't matter who we are, कौन वहां बैठा है, किस स्टार्टर में है, किसका क्या बिलीफ है, it doesn't matter. When Guruji calls him, he just makes everybody one sangat, one family. Sangat family. That is what he wanted us to realize that. And even though we never talked, but just seeing everybody, you felt so connected. Every day when we used to go to Guruji's darbar, कितने लोगों को हम सब देखते थे, and we felt connected, but we never spoke. So that was another learning, that words has no meaning. You can still be connected without words. आप कहीं भी रहिए, आपको बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वंस गुरुजी वो रिश्ता बना देते हैं। वो देखिए इतने दिनों के बाद, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद किस तरह से लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ भेज दिया गुरुजी ने सियाटल में, और हाउ ड्यूरिंग कोविड ही ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर, लाइक रीयूनाइटेड दिस संगत फैमिली अगेन। कितने कितने लोग जो जैसे कहते हैं ना कि छूट से गए थे, कनेक्शन नहीं था, किस तरह से वो जूम के माध्यम से गुरुजी ने सबको जोड़ा है। और फिर से वो गुरुजी का जो सत्संग का जो मैं कहूंगी जो सत्संग एक माध्यम था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी ऐसे ही उन्होंने शुरू कराया। And I'm very, very grateful that how it is happening and how we are reconnecting with satsang, with Shabad Bani, with Zoom platforms, listening to each other, and connecting through beautiful these books. जो राहुल की ये book है, इसके through, और like
we just starting all over again where we had left at Empire State. तो ऐसे ही गुरु जी का जो ये एक साथ एकता जो कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। यही संत कबीर कहते थे और यही गुरु नानक और यही गुरु जी। There's no difference. Guruji ki teachings is very universal, and it is very easy to follow because there's no dogmas, there's no rituals. Guruji तो हमें ritual से निकालने आए थे, कहते थे क्योंकि हम कहते थे तुम लोग डर डर के भक्ति करते हो. Bhakti was another thing that Guruji used to talk more about. Is what is bhakti? Guruji said भगवान रब से डर के ना रहो, रब नु प्यार करो. He taught us to love the divine, not to be scared of it. और ऐसे ही कितने कितने ये था, जैसे कोई बोले राम, कोई बोले खुदाई, कोई ये सारी चीजें वो वहां शब्द नहीं बैठे बैठे गुरु जी सिखा देते थे. कितनी चीजें जो समझ में नहीं आती थी वो अपने आप शब्द के थ्रू गुरु जी यूज्ड टू स्प्रेड दैट मैसेज. और गुरु जी का मेन था हाउ दिस humanism, how to conduct a life, how each human being should not think that they're superior with somebody that you look down upon. कहते ना एक नोट दे सब जन उपजे, कौन भले कौन चंगे. We all are same divine, little spark of divinity or little spark of that light and connection with the divine also. It makes into like जैसे एक होता है ना कि मोतियों की माला, उसी प्रकार से मोतियों की माला की लड़ी के हम सारे उसके पार्ट हैं. So कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है. We all are same. So this was another very big thing that Guruji always emphasized. And as I said कि वहाँ एक साथ बैठते थे, एक साथ लंगर होता था और एक ही साथ ही सबको बाहर जाना होता था. जल प्रसाद होता था, चाय प्रसाद. There was no difference. So that was a very big teaching. And also Raul starts with the karma theory. Karma theory is I will go back to this what Guruji really what he taught about universal brotherhood, and he didn't believe in any caste system. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू अपने कुड़िया दा ब्याह कर. And actually I had no idea at that time because our oldest daughter had already come to US and she was in her dental school. और गुरुजी बार बार कहते थे तू अपनी कुड़ी दा ब्याह कर. So I called her. I said, if you know somebody, if you want to get married, Guruji का हुक्म है. क्योंकि तब तक मुझे पता चल गया था Guruji is God. Everybody has a different description of Guruji or different relation of Guruji. But for me, Guruji is 100% God, and he's Mahadev. And I will share my experience how I found out Guruji is Mahadev. इसमें शिव पुराण के बारे में भी है तो उस पर फोकस करेंगे बाद में. So when he said that, I told my daughter कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं उनका हुक्म है और गुरुजी भगवान हैं, उनका हुक्म हमें मानना होगा. तो तुम बताओ अगर तुम किसी को जानती हो, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो. क्योंकि I was totally into Guruji.
my focus was only Guruji at that time, and I was shying away from our responsibility really. And that's another topic that is in here is I will share that later. Or she said, Mom, I don't have time and I don't know anybody. So I said, what should we do, beta? Guruji aise baar baar keh rahe hain. So should you look or I look? She said, no, you look for me. So मैं उसके लिए उससे 2-3 questions पूछ करके कि what are the main things that I should be looking for a partner for her, and she gave 2-3 points that I focused on. बट मुझे कुछ पता ही नहीं था, और उस समय शादी.com नई नई आई थी, तो मैंने उसको उसमें उसका प्रोफाइल डाल दिया, और मैंने उससे पूछा कि बेटा अपने से अगर कर रहे हैं तो जो राजपूत, सो हमने कहा राजपूत लड़के के लिए लिखते हैं, कहते हाँ माम दैट्स फाइन, तो मैंने उसमें राजपूत लिख दिया था। गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो सब कुछ मालूम होता है ना, पहले ही से सब कुछ मालूम होता है उनको, और मैंने किसी को नहीं बताया था। और काफी समय बीत गया और कोई ठीक लग नहीं रहा था मुझे, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चे आपसे कहते हैं ढूंढने के लिए, तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो 1 साल बीत गए थे ऑलमोस्ट, और अचानक गुरुजी ने मुझे एक बार अपने चरणों की सेवा दी, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, कोई लड़का मिला? ऐसे नहीं गुरुजी। You know what Guruji looked at me and he said, "तू जात पात से ऊपर उठ." That was a very big thing for me, क्योंकि that was exactly I was caught. And यहाँ पे जो ह्यूमनिज्म और यहाँ पे जो इंटररिलीजियस हार्मनी है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली गुरुजी ने मुझे सिखाया. So it's very close to my heart. And I said, "Ji Guruji," and I went back and I took out on her profile Rajput हटा के मैंने हिंदू लिख दिया. And you wouldn't believe how it happened. जिस दिन मैंने वो हटाया, it was my birthday, and I found क्या, वो तो गुरुजी ने कराया. My present son-in-law, बड़ी बेटी के husband जो अब हैं, he had written a beautiful description about his family, about himself, and I thought that was exactly what I was looking for. But I was going the wrong way. मैं जात पात में फंसी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर क्या कहेंगे कि यूएस में जाके कहाँ शादी कर रहे हो. All that was in my mind. Nobody even said, but that was my thought. So Guruji showed me the way, and I'm so grateful that जब तक गुरुजी आपको सोच नहीं देते हैं ना, आप सही रास्ते जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो बुद्धि ही नहीं है. मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं रहता था. दिस इज ऑल गुरु कृपा की. वो जब कुछ बोलते थे, एक सेंटेंस में उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा जो अभी मैं पढ़ रही थी, किस तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इंटर रिलीजियस और हार्मनी एंड गेटिंग ओवर दिस कास्ट सिस्टम, एवरीथिंग. This is exactly what Guruji taught me and my own experience. And when you listen to your Guru, he takes you where you don't even know that life is going to be so beautiful. And that was my experience. I could not ever find by myself what Guruji showed me, and by following his what he told me, following that, I found my son-in-law, which I think I could never have found it otherwise. So thank you, Guruji. And that was one part that I wanted to share, that how Guruji firsthand taught me about this, what I was reading in Rao's beautiful book about
humanism, about the interreligious harmony, everything firsthand. सब एक हैं, and he's not Rajput, he's Gujarati, but beautiful, beautiful everything. And thank you गुरुजी ने कहा कि सारे एक हैं, कोई जात पात से ऊपर उठ, ये उनका एक सेंटेंस कहने का, it changed my life. And उसके बाद से तो I never look. I have 3 daughters who got married, and I just followed whatever Guruji had taught, and it's all his blessings. Another thing, what Raul is talking about is karma theory in here, that how Guruji was part of the great Indian spiritual tradition, a believer of the karmic principles. Every man is responsible for their own deeds. You cannot blame God, others, or the external world for your sufferings or good times. Guru Nanak says, why blame others? Blame your own deeds, for one receives the fruit of what one sows. Or the interrelation of the birth cycle of karma and rebirth has been often highlighted by Guruji. The salvation from the karmic cycle and resultant sufferings lie in the spiritual quest. The start of the quest is receiving guidance of the true Guru. If you are graced to find one, after surrendering to him, in the alternative follow the path of surrendering to Guru and to God and loving him directly. Man can conquer suffering by attaining salvation that is free from the cycle of rebirth. To purify one's own heart, one must seek the love of God or Guru. That is very, very important. As Guruji used to say, रब नु प्यार करो, उदय कोलन डरो नहीं, love God, do not fear him. As you can see, my Punjabi is still not perfect, but Guruji told me that tu Punjabi sikh, so mujhe samajh mein aane lagi. That is the power of Guruji's words. Or so इस पर मैं what the karmic theory about what Raul has written about is so true. All बचपन से हम सुनते आए हैं ना, जैसा करो वैसा भरो. बचपन में एक सीखा था कि लगाया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए. मतलब जो भी सीड आप लगाते हैं ना, वही आपको मिलता है. अगर आपने सेब का पेड़ उगाना है तो सेब का सीड आपको लगाना होगा. अगर आपको अच्छे रिजल्ट पाना है तो आपको अच्छा करना होगा. सो दिस कार्मिक we, especially in our Indian Sanatan Dharma or reincarnation, I would say is the Sanatan Dharma. That's the only place where we all believe in incarnation and rebirth. And that is so beautiful because it makes us into a beautiful human being. It's not that we're living कि बस यही एक लाइफ है, जी लो, जो कर लो. अब कहते हैं ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. It's not like that. However, whatever we are doing now, according to that, we will शिव पुराण में अभी कितनी बार हम सब पढ़ चुके हैं और उसमें कितनी बार आया है. एक पूरा अध्याय है एक्चुअली उस पर, कार्मिक और रीइंकार्नेशन पर. जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें यातनाएं भी मिलती हैं या हमें आगे जा करके उसका फल भी मिलता है, और उसी के हिसाब से हमारा जन्म भी निश्चित होता है. तो ये सारी चीजें हम सब ने कितनी बार पढ़ी हैं, समझी हैं और एक्सपीरियंस भी किया है. तो ये इस पर मैं कुछ पल जो मैंने गुरुजी के साथ जो बिताए और जो सीखे, जो ऑब्जर्व करके, जस्ट बाय सिटिंग देयर एंड वाचिंग. एक बार मुझे याद है कि सत्संग में
एक आंटी अपने एक बेटे को लेके आई थी एंड वो उसको कई बहुत प्रॉब्लम थी एंड वो बार बार गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रही थी, गुरुजी आप इसको ठीक कर दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। और गुरुजी ने काफी कुछ ठीक कर दिया था, पर कुछ कुछ चीजें रह गई थी। तो वो बार बार गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप ये पूरा नहीं ठीक हुआ, आप इसको पूरा ठीक कर दीजिए गुरुजी। एज अ मदर आई कैन सिंपथाइज, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी के लिए गई थी। तो गुरुजी ने, मैं वहीं बैठी थी और गुरुजी ने मेरे सामने कहा कि मैं उसको थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो जो है उसको थोड़ा सा उसे भोगना ही होगा। अगर मैं पूरा ठीक कर दूंगा तो अगले जन्म में उसका उसको भोगना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात गुरुजी ने कही, जो हमें समझ में आई कि इवन गॉड doesn't interfere with nature, the process of karmas, the process of हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो कर्म होते हैं, कुछ इसमें कितनी बार श्री पुराण में आया है कि किस तरह से हमें सब कुछ उसको सहना पड़ता है और झेलना होता है। और जो बुरे बुरे कर्म होते हैं, हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, या इवन थॉट, नॉट जस्ट एक्शंस, इवन गुरुजी तभी तो कहते थे चंगा बंदा बन, कहते थे गुरुजी कि अपने को एकदम अपने कर्म पर नजर रखो। कर्म पर मतलब गुरुजी ने एक कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि निंदा चुगली नहीं करो, क्योंकि जब हम निंदा चुगली करते हैं तो हमारी जिसकी निंदा करते हैं वो सारे हमारे अच्छे कर्म उसको चले जाते हैं, उसके बुरे कर्म हमें मिल जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग why Guruji used to say that. And उसके बाद गुरुजी और कहते थे कि किसी का बुरा नहीं करना। ये सारी चीजें गुरुजी ने हम सब संगत को सिखाई हुई है, बताई हुई है कि किस तरह से हमें अपनी आगे की लाइफ पर भी नजर रख करके, स्पेशली जब गुरु हमें मिल जाते हैं तो उनकी गाइडेंस में और उनकी ऑरा से कितनी चीजें तो यूं ही अपने आप ठीक हो जाती हैं। और जो कुछ भी है और जिस तरह से गुरुजी कहते थे कि तुम्हें जो अपने कर्मों का, गुरुजी अक्सर कहते थे कि कर्मों पर नजर रखो, इन द सेंस दैट the reason why we have come on this earth, why we have been sent, हम करने, हमें क्यों भेजा गया, हम कर क्या रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक है समझना। क्योंकि every birth we come back again. Why? Because we have to जो हमारे छूट जाते हैं, जो हम उसको भोग नहीं पाते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे यातना हो, चाहे सुख हो, जब तक वो पूरे एग्जॉस्ट नहीं होते हैं हमारे कर्म, हमें आवागमन तो होता ही रहता है। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। और यहाँ पर इसको ब्यूटीफुली समझाया भी गया है कि गुरुजी यूज्ड टू से, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लाओ, कोई मनाही नहीं है। गुरुजी कहते थे, गुरुजी के पास जाकर के मैंने ठीक से अंतर मत तो सस्ता है, पर गुरुजी के यहाँ जाने के बाद मैंने सीखा कि स्पिरिचुअलिटी में इट्स नॉट मोनोटोनस, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स अ सेलिब्रेशन, यू ड्रेस अप नाइसली। और गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था, आंटी तू जब लिपस्टिक भी लगाना तो ऐसा लगा कि अपने गुरु के लिए लगा रही है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, दैट व्हेन यू हैव फाउंड योर गुरु, एवरीथिंग इज, कहते हैं ना, जो समर्पण कर दिया, मतलब
जो भी हम कर रहे हैं वो सब उनके उनके ही सामने है सब कुछ. There's no way. He's always looking at us. चाहे हमारी सोल हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे हमारी सोच हो, वो सब में वो समाये हुए हैं. और उसके हिसाब से ही हमें अपने कर्म करने होंगे. तो अगर ये सोच करके, जैसे गुरु जी ने कहा कि तू लिपस्टिक भी लगा, तो ऐसा सोच कि अपने गुरु के लिए लगा रही है. गुरु से डरने की बात नहीं है. गुरु जी से प्रेम करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए. गुरु जी इज एपिटोम ऑफ लव. और उनकी जितनी संगत है उनसे भी आपको कोई बैर नहीं, कोई कुछ नहीं. जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है. नो जजमेंट्स. गुरु जी ने कभी हम सबको जज नहीं किया. हम चाहे टेढ़े मेढ़े जैसे भी थे, गुरु जी ने हम सबको अपनाया और इतना ब्लेस किया. और कितने अच्छी तरह से गुरु जी ने समझाया है कि जैसे वो हमें फॉरगिव करके हमें इतना प्रेम उन्होंने दिया, उसी प्रकार से हमें भी सबको अगर हम फॉरगिव करते हुए आगे बढ़े तो इट विल बी, लाइफ विल बी सो इजियर. देन नो बैगेज, नो ग्रजेस, नो ब्लॉकेजेस टू फॉर द हिंड्रेंस फॉर अ सोल टू गो हायर एंड हायर. क्योंकि जब ये चीजें आती हैं देन हमें वो नीचे खींच लेती हैं. देन वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर. वी हैव टू गो थ्रू दैट कार्मिक प्रोसेस अगेन. कि उसने ये किया, अब हम नाराज हो गए, अब मेरी लड़ाई हो गई, अब हम बोलना बंद कर दिया, तो वो कार्मिक अकाउंट बढ़ा लिया हमने. तो गुरुजी तभी कहते थे अपने कार्मिक अकाउंट को तुम्हें घटाना है, हमें बढ़ाना नहीं है. तो this is a very important chapter that I feel it is very important to understand about this karmic accounts, about the karma theory जो यहाँ पर ब्राउन ने इतनी ब्यूटीफुली तरह से जो लिखा है कि गुरु से किस तरह से. और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक जगह समझाया भी है कि ये किस तरह से जो इसमें उन्होंने दिया है कि ये जो व्याद गीता है उसके बारे में बताया है उन्होंने कि किस तरह से वहां पर आ, ये समझाया है ह्यूमिलिटी के बारे में. कि ये कर्मा के बाद जो ह्यूमिलिटी होती है, ह्यूमिलिटी इन द सेंस इज सबसे ज्यादा जो एरोगेंस होता है वो कभी कभी स्पिरिचुअल एब्सेंस कहते हैं. ह्यूमिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एरोगेंस. क्योंकि एरोगेंस तो तरह तरह का होता है. हमें स्पिरिचुअल एरोगेंस भी कभी कभी स्नीक इन कर जाता है, जो हम कभी कभी उसको देख भी नहीं पाते हैं कि अरे हम तो इतने ऊंचे हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और गुरु जी को तो ईगो बिल्कुल नहीं पसंद था. गुरु जी कहते थे कि जितने तुम अपने जोड़े उतारते हो उतने अपने अपने ईगो भी और अपना जो दिमाग है वो भी वहीं छोड़ के आओ. तो गुरु जी के यहाँ तो जब तक हम जीरो हो करके और विदाउट एनी आइडेंटिटी, लाइक स्मॉक ऑफ डस्ट आई वुड से, वी आर नथिंग. गुरु जी कहते थे तुम सब तो कीड़े मकोड़ों की तरह मुझे दिखते हो. तो किस चीज का हमें एरोगेंस है, किस चीज का है ह्यूमिलिटी is one thing that Guruji used to really I would say uh, this is what he expected from the Sangat. कि बहुत दिखावा ना करो. गुरुजी अक्सर कहते थे कि नीवा होके रहो. और गुरुजी another one thing which इसमें जो इन्होंने व्याद गीता के बारे में है कि वो जो इस पार्ट ऑफ द महाभारत की वो एक स्टोरी जो इन्होंने बताई है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. कि एक शब्द के साथ भी मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ. शब्द के साथ है कि कैसे एक तपस्वी है और वो योगी है और वो बहुत ध्यान में मेडिटेशन में रहता है. और कितने पता नहीं कब कितने सालों तक वो चट्टान में बैठ करके तपस्या करता है, मेडिटेट कर रहा है. और
वो उसमें हम आ जाता है, तभी हमें जब तक हम गुरु जी से के साथ एकदम अपने को विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एनी स्टैम्प कि हम ये हैं वो हैं, जब तक वो नहीं जाएगा हम उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो वो जो योगी था वो भी ध्यान करते करते उसमें अहम आ गया कहीं ना कहीं, और वो आ, ईश्वर सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत तपस्या करी है, मांगो तुमको क्या मांगना है। एंड ही सेज कि आ, तुमको तुमको तुम्हारे तुम्हें मेरी बख्शिश चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल चाहते हो। और उसने कहा मुझे तपस्या का फल दे दीजिए। एंड उस समय वो जो चट्टान थी वो बोल पड़ी, कहती है कि जब ये मांगने पर आया है तो मैं भी मांगूंगी कि ये मेरे ऊपर बैठ करके इतने वर्ष इसने तपस्या करी है, ये बैठा है, इसने मेडिटेट किया है, तो उसका भी मुझे फल उसको वो देना चाहिए। तो ये समझ में आता है कि क्या स्पिरिचुअल इसमें हमें क्या अ, ये एब्सेंस ऑफ एरोगेंस होना चाहिए। वैसे ही जैसे यहाँ पर है ये एक साधक है और उसमें भी बहुत अहम आ जाता है, उसको मेडिटेशन ये सब बहुत अच्छा वो साधक है। और एक बार वो ऐसे साधना कर रहा था और वो क्रो और क्रेन उसकी जो बर्ड्स होती हैं वो आकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया और वो गुस्से में उठा। गुस्सा इज अनदर थिंग। गुरुजी कहते थे जब तुम गुस्सा होते हो तो मेरे से दूर हो जाते हो। तो यहाँ बुक में यही ये समझा रहे हैं कि किस तरह से by realizing the effect of his yogic power, the sannyasi was filled with pride and arrogance. Therefore, thereafter he went for begging alms and reached a household where the house lady was nursing his ailing husband. और वो जो लेडी है वो उनको देख करके कहती है कि अच्छा जब ये क्रो और ये फाइट बर्ड्स की हो रही थी तो जब गुस्से में उठते हैं तो क्या करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और वो बर्ड्स जल के खाक हो जाती हैं। तो इनको प्राइड हो जाता है कि अरे मेरी साधना इतनी हो गई है कि मैं तो लोगों को देखकर ही गुस्से में उनको नष्ट कर सकता हूँ। तो वो इफेक्ट ऑफ उनको वो एकदम से वो हो गया। तो इस हिसाब से वो जब आर्म्स के लिए जाते हैं मांगने के लिए, सन्यासी हैं, तो घर पर एक जब जाते हैं तो एक लेडी है जो अपने हस्बैंड की सेवा कर रही है, जो चल नहीं पाते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा स्वामी जी आप योगी जी आए, आप थोड़ा ठहरिए, मैं अपने हस्बैंड का ये काम कर रही हूँ, फिर आके आपको देखती हूँ। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा अपमान कर दिया है। तो वो कहते हैं कि आप क्या मुझे भी भस्म कर देंगे जैसे आपने ये उन चिड़ियों को भस्म किया था गुस्से में आकर के। तो वो थोड़ा हैरान होते हैं कि ये क्या कह रही हैं, इनको कैसे पता चला। एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस, he begged pardon of the lady and implored how come she had attained such a level of spirituality, कि उन्हें कैसे पता चला कि वो तो ना ध्यान करती हैं ना पाठ करती हैं, वो अपने पति की सेवा कर रही हैं। And the lady explained that she did not practice any austerity, just by doing her duty and with cheerfulness and wholeheartedness with the Supreme Lord in mind, she became illuminate. देखिए कुछ भी करना नहीं होता है, आप प्रेम से रहिए, आप गुरु जी से जुड़े रहिए, आप अपनी ड्यूटीज करते रहिए। ड्यूटी के बारे में मुझे याद आता है कि मेरे साथ एक्सपीरियंस जो हुआ, आई डोंट नो बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, लेट मी जस्ट इन शॉर्ट में हाउ गुरु जी यूज्ड टू से कि मैं तुम्हें घर छुड़ाने नहीं आया हूँ, घर में बैठे बैठे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए मेरे से जुड़ो। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, मैंने तो कहीं नहीं देखा। गुरु जी कहते थे कि तुम्हें मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी ड्यूटी रिस्ट्रिक्ट करती है तुम घर पर ही बैठ के मुझे याद करो। तो ऐसे ही मुझे जब गुरु जी से प्रेम हो गया और मेरा मन गुरु जी में ही लग गया, तो
मुझे वापस सिंगापुर जाने का मन नहीं होता था, मैं बहुत रोती थी। आई यूज्ड टू फील कि अब भगवान मिल गए हैं, एंड माय सोल यूज्ड टू थिंक से फील सो कनेक्टेड टू गुरु जी। मुझे लगता था भगवान मिल गए हैं और आत्मा को परमात्मा ही चाहिए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही एक एम होता है सोल का। एंड दैट वाज इन माय थॉट, आई नेवर शेयर दिस विद एनीबॉडी, एंड आई यूज्ड टू इंटरनली कीप थिंकिंग कि गुरु जी एक छोटी सी जगह मुझे दे दें और मैं उनकी सेवा करूं, और उनके जो भी है, जो मेरा थॉट प्रोसेस था। गुरु जी तो अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग। वन डे ही कॉल मी एंड ही सेड, मैं घर छुड़ाने नहीं आया हूं, तू अपने सारी जिम्मेदारियां, सारे तेरी जो ड्यूटीज हैं, तेरे कुड़ियां हैं, सबका ब्याह कर। And then he said one thing, I hope MP is not listening. He said, तू MP अंकल की सेवा कर, वही यही तेरा असली तेरा वो है। एंड he said, घर में रह करके मेरे से जुड़ी रहे। That was a very big lesson, which यहाँ पर भी जो जब मैं पढ़ रही थी इस बुक में, वो लेडी का, I'll repeat this. I love this sentence. Let me read this again. The lady explained that she did not practice any austerities, and by doing her duty with cheerfulness and wholeheartedness, with the Supreme Lord in mind, she became illumined. सोचिए कि केवल अपनी ड्यूटी करते हुए, ऐसे ही तो गुरुजी चाहते थे हम सब बने। Or the sannyasi requested the lady to impart him spiritual knowledge. However, she redirected him to a vyad, butcher जो hunter होता है, कहते हैं वहां जाओ। और जब वो वहां जाते हैं, तब वो बुचर कहता है कि अच्छा अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं रुक जाओ, वेट करो मेरे लिए। फिर कहते हैं, आफ्टर ट्रीटिंग द सन्यासी वेल, द व्याद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्मा एंड स्वधर्मा। ये बहुत जरूरी है। एंड इस प्रिंसिपल पर चल के वो कहते हैं, नो ड्यूटी इज अगली, नो ड्यूटी इज इम्प्योर, इट इज ब्यूटिफुल। Rahul, I really like this part about duty, how you have explained what it is, and that is the attainment of freedom by the performance of Swadharma is also one of the central teachings of the Bhagavad Gita. और जो butcher था, जो व्याध था, who is a butcher or hunter, considered low by birth, but engaged in dharma and doing good to others, is capable of teaching a Brahman. सोचिए, वो ब्राह्मण था ना, जो ध्यान, जो योगी था, वो ब्राह्मण था। तो उसने सिखाया कि कोई भी ड्यूटी जो है अगली नहीं होती है, और कोई भी छोटा नहीं होता है, और किस प्रकार से केवल अपना धर्म करते हुए ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जैसे गुरु जी कहते थे। और एक चीज और है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका ये है कि हाउ इट इज, गुरु जी कहते थे कि अभिमान ना करो, क्योंकि वन टाइम गुरु जी सेड एवरीथिंग इज टेम्पररी। वी थिंक कि आज हमारे पास ये है, कल कुछ किसी ने नहीं देखा है, एंड अभिमान किस बात का। तो ऐसे ही ये जो ट्रांसिटरी, अक्सर गुरु जी कहते थे, क्या कहते थे कि पल दा खबर नहीं समान 100 साल दा, कि मतलब एक मिनट भी हमें नहीं मालूम है कल क्या होने वाला है, इतना इकट्ठा कर लिया है। मटेरियलिज्म, उससे उठना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में the more we get caught up with materialism, the more distant we will be in that journey of spirituality. और उसके अलावा ये भी कहते थे गुरु जी, लोग ये ना फालतू खर्चा करते हैं, ब्याह सिंपल होना चाहिए। गुरु जी ने मुझसे भी कहा था, जब मेरी बेटी के गुरु जी ने उसका रिश्ता करवाया, और जब शादी का हुआ तो गुरु जी ने बुला के कहा, सिंपल ब्याह करी। एंड how it happened, it all happened with Guruji's kripa only, about Guruji's guidance only. उन्होंने ही संगत भेजी, 15 संगत को, which I don't even know.
किसी का नाम नहीं जानती थी क्योंकि वहां किसी से बातें ही नहीं होती थी. एंड गुरुजी कॉल्ड एंड ही सेड मैं ऐसे ऐसे संगत भेज रहा हूँ इस तरह से. एंड 15 संगत केम फ्रॉम ऑल ओवर यूएस, जिनको गुरुजी ने कहा था कि उठे जा सियाटल जा. एंड though it happened after Guruji left Chola on July 14th, 2007, but Guruji पहले से ही सबको कार्ड देके गए थे. So that was the love of a guru, कि गुरुजी कितने beautifully अपनी संगत को इतना प्यार करते थे. The love of a guru. And then Raul also beautifully how he explains the spiritual essence of Shiv Puran. That will take a very long time for me to get into, because I see I've already taken enough time. But Shiv Puran is very dear to my heart because गुरुजी ने स्वयं मुझे बुलाकर कहा था. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था शिव पुराण कोई बुक भी होती है. मुझे गीता मैं पढ़ती थी और रामायण बहुत पढ़ती थी, पर शिव पुराण मैंने कभी नहीं पढ़ी. दो आई वाज अ शिव भक्त. जैसे मैंने कहा मैं रिचुअल में थी. मैं जल डालती थी शिवलिंग पर और सोमवार का व्रत रखती थी और शिव चालीसा या शिव जी की आराधना या उन पर उनकी आरती करती थी, पर मैंने पढ़ा नहीं था. तो गुरुजी ने मुझसे कहा तू शिव पुराण पढ़ा कर रोज एक one chapter, he said. And then he looked at me and he said, तू बाहर रहती है, तेरे पास सारा काम अपने से करना होता है, इतने कंसर्न इतने कंपैशनेट गुरु कहाँ मिलेंगे. कहते तू ऐसा करना, तो एक पेज पढ़ लिया कर. ऐसे जी गुरुजी का जैसा हुक्म. And that's how I started reading. But actually I started understanding during the COVID time when the Zoom platform started. And जैसे every word what I read is takes me back to my guru, because ये जब तक गुरु कृपा ना हो आपको कुछ नहीं समझ में आता है. तो यहाँ पर जो शिव पुराण का है, एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस कि किस तरह से spiritual essence of the Shiv Puran, when you read, each pore is just becomes शिव में हो जाते हैं. आपका मन निर्मल हो जाता है. आप अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं. और जब तक आपको गुरु कुछ समझाते नहीं, आपको समझ में भी नहीं आता है. मेरी कोई बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है किसी चीज के बारे में, बट आई डोंट नो कहाँ से वो अपने आप से धीरे धीरे सब कुछ समझाते हैं. और it has nothing to do with anybody. It's all how he does it. Or Shiv Puran mein basically what it is how the more you read, the more you find out more about your guru. I have learned everything about Guruji, more about Guruji after I started reading Shiv Puran on the Zoom platform. So thank you so much. और एक चीज यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि शिव तत्व क्या होता है और शिव है कौन. तो मैं बस शॉर्ट में बताती हूँ, देन आई विल मूव ओवर, पास इट ऑन टू गोपालंकर. सो जैसे गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ा कर, तो उसी हिसाब से पढ़ती तो थी, पर उस समय समझ नहीं आता था कुछ भी. तो ऐसे ही जब एक बार गुरुजी के साथ बैठे थे, तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि गुरुजी हु आर यू. बिकॉज गुरुजी लाइफ दे देते थे. गुरुजी कौन दे सकता है जीवन दान. गुरुजी कैंसर ठीक कर देते थे. गुरुजी जो जिसको बच्चे चाहिए थे वो गुरुजी ऐसे ही ब्लेस कर देते थे. तो everything was happening right in front of our eyes. And I started questioning this, Guruji, who are you? Who are you?
and I want to see the real you. And ये क्वेश्चन बार बार आता था। गुरुजी ने एक बार कहा था कि तू मेरे से कोई बात नहीं करना, तू साइलेंस में आज के बाद रहना, और मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। अ, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूंगा। So basically, I did not speak with Guruji until he would approach or ask me questions. So, पर वो मेरे दिमाग में वही चलता था। गुरुजी कहते थे तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है जब तू ध्यान में बैठेगी। So that was a prerequisite. So मैं ध्यान में बैठने लगी। बैठने नहीं लगी, गुरुजी की कृपा से ही होता है। मुझे तो पता भी नहीं था ध्यान क्या होता है, मैंने कभी ध्यान नहीं किया था पहले। गुरुजी ने ही सिखाया। वो सुबह ही उठवा देते थे, जैसा जैसा वो करते थे। आई वाज लाइक अ रोबोट, व्हाटएवर ही वुड डू इट वाज हैपनिंग, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिम। एंड ध्यान में बैठती थी, पर वो ध्यान में एक क्वेश्चन आता था, गुरुजी आप कौन है, हु आर यू गुरुजी? एंड गुरुजी को तो अंतर्यामी है, उन्हें सब मालूम है। तो वो उन्हें मालूम है कि ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रही है, शी स्टक विद दैट क्वेश्चन। तो गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तू ना बड़ी मंदिर चली जा मंडे को, उठे जाके दर्शन करके आ। जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने जैसे बोला था, जिस दिन बोला था, सोमवार का दिन था, गए और वो जो फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति हैं, जब उनको प्रणाम किया, जब ऊपर उठे तो देखा कि वो आधे शिव जी हो गए, आधे गुरुजी, एंड ही स्माइलिंग। सो आई गॉट माई आंसर। उसके बाद वापस जब गई, गुरुजी का चरण स्पर्श किया, गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं फिर हो गया दर्शन? I said, Guruji, now I have no questions. Thank you so much. That burden was off my shoulder. I got my answer. There's no duality. वो कहते हैं ना कि ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। वो एक परमेश्वर, जो डिविनिटी, जो महादेव। मैं यही सोचती थी कि गुरुजी तो सिख फैमिली से हैं, ये शिव मंदिर, बड़ा मंदिर, हर जगह ओम नमः शिवाय, और ये शिव पुराण गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी है कौन? तो गुरुजी ने बता दिया कि वो महादेवी हैं। There's no difference. And the more we read the शिव पुराण, जिस तरह से सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ वैसे ही है। Everything. In summary, the spiritual essence of Guruji resonates with the Advait, uh, Advait philosophy of the Vedanta, emphasizing the Bhakti Yoga as the preferred path to God realization. जब तक भक्ति नहीं होगी, प्रेम कैसे उपजेगा? केवल ज्ञान से आपको प्रेम रस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच टू डिविनिटी। कहते हैं अपने प्रभु से प्रेम, गुरु जी भी कहते थे कि डरो नहीं, मेरे से प्रेम करो बस। तो ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल pages, whatever I was supposed to talk about or review or put my 2 cents into the reading of that few lines and few pages. It just took me back to my guru. And thank you so much, Raul, for this beautiful, beautiful book. And thank you for this opportunity to be on this platform today. And I would pass it on to Gopal uncle with all his beautiful knowledge about everything. Thank you so much, Raul, and thank you so much, Vasan uncle, and thank you so much, all the Sangat who's together here, joined. And over to you, Gopal uncle. Jai Guruji. जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच उषा आंटी, थैंक यू सो मच राहुल अंकल। आपके जो बुक रीडिंग का जो ये टॉपिक है, द स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ गुरुजी, राहुल अंकल आपने इतने सुंदर शब्दों में, इतने सरल शब्दों में उसका व्याख्यान किया है, एंड विद रेलेवेंट वर्सेस फ्रॉम शिव पुराण, गुरबानी, संत कबीर और भी जो ज्ञानी लोग हैं उनके कोट्स आपने इसमें डालकर, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा अगर कहें तो उषा आंटी ने अपने
व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर गुरुजी ने जो कुछ कहा, गुरुजी ने जो कुछ उनको बताया, वो उन्होंने एहसास किया और उस एहसास के माध्यम से हमारे साथ वो अपने अनुभव और एहसास दोनों बांटे। तो अब इसमें मेरे लिए कुछ विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत अगर अपनी इस संकुचित ज्ञान और बुद्धि से अगर मैं कुछ इसमें ऐड कर पाऊं तो गुरुजी की कृपा ही होगी वो। और देखिए, स्पिरिचुअल जब एसेंस की हम बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो अक्सर हम इसको हम जो साधारण जीव हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, और जैसा गुरुजी भी कहा करते थे कि लोकी रब नूं भुले बैठे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान आया। तो हमें तो ज्ञान है नहीं रब क्या होता है, गुरु क्या होता है, और इसीलिए रब का ज्ञान हमको सच्चा ज्ञान देने के लिए रब ही गुरु का स्वरूप धारण करता है। जैसा कि शिव पुराण में भी बताया, महादेव ने स्वयं बताया कि मैं न केवल जाकर के हमारे जो कलयुगी जीव हैं उनके जो दुखग्रस्त, शोकग्रस्त, पीड़ाग्रस्त जो होंगे, उनको मैं जाकर के उनकी पीड़ा तो हरूंगा ही, और उनको उत्तम ज्ञान से मैं साधूंगा ताकि वो फिर मुझे भूले ना और मेरे साथ साथ चलते रहें। तो अब इसमें जैसा कि सभी उषा जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि भक्ति के अलावा और कोई मार्ग है नहीं। हम जब तब उपवास, व्रत, निद्रा त्याग, ये त्याग वो त्याग जितना मर्जी कर लें, लेकिन जब तक वो रब से सच्चा प्यार नहीं जुड़ेगा, तब तक हम जितने भी मर्जी वेद पुराण पढ़ लें। गुरुजी ने कहा वेद पुराण पढ़ो केवल समझने मात्र के लिए, लेकिन असली कनेक्शन तो तभी होगा जब हमें हमारे मन में उनके प्रति सच्चा प्यार जागेगा। जगा रहे हैं वो, लेकिन चूंकि हम कर्मबद्ध हैं और अपने अपने कर्मों के अधीन रहते हैं, बहुत से विकार हमारे अंदर घर कर चुके हैं, तो समय लगता है। हमारी अपनी अपनी यात्रा है, हम अपने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अपने जो ज्ञान के आधार पर ना हम बांटने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा सही है, वैसा नहीं वैसा सही है। तो ये गुरुजी ने हमें इन भ्रांतियों से ही निकालने आया। और जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, जब किसी से सच्ची भक्ति करते हैं, तो फिर इफ्स एंड बट्स सब खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारे मन में शंका समाधान जो चलते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। शिव पुराण में भी महादेव ने स्वयं, और वो भी किससे, माँ भगवती ने सती के रूप में जब वो आई, तो वो जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि मैं आपके साथ बहुत विचरण कर चुकी हूँ, इधर उधर जाना, ये करना, वो देखना, ये करना, आप मुझे अब थोड़ा शिव तत्व के बारे में बताया। तो महादेव ने सरल भाषा में उनको, हम सब के समझने के लिए, माँ भगवती और महादेव तो एक ही हैं, तो यही बताया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कभी कभी हम भटक के क्या करते हैं, हम ज्ञान की ओर ज्यादा प्रेरित होते हैं कि चलिए हम ये पढ़ लेते हैं, इससे ये ज्ञान मिलेगा। क्योंकि ये ज्ञान भी जो है अलग अलग मत हैं, और अलग अलग मतों के आधार पर जो व्याख्या करने वाला है वो अपने हिसाब से व्याख्या करता है। हम सबके साथ इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान क्या है, फिर हमको भटका देता है। उससे पहले की आवश्यकता है भक्ति। भक्ति अगर नहीं होगी तो सारा ज्ञान उपलब्ध किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, उनको सुन रहा था। बहुत ही सुंदर बात मुझे लगी उनकी, दो पंक्तियों की बात थी। उन्होंने समझाया कि भक्ति जितनी भी हो कम है, जितनी भी हो। हम काउंट करने लगते हैं और वो कहते हैं कि भक्ति कोई अंक गणित नहीं है कि मैं सुबह उठ के इतनी देर घंटी बजाई, इतने मंत्र पाठ करे और इतनी आरती करी और इतना ये करा, इतने शब्द सुने, ये करा। वो नहीं है। भक्ति जितनी भी हो कम है, और ज्ञान जितना भी हो वो अधिक है। क्योंकि ज्ञान जो है वो हमें भटकाता है, वाद विवाद की ओर ले जाता है, जबकि
हमारी सबकी अपनी अलग अलग आंखें हैं, अलग अलग कान हैं, अलग अलग सब कुछ श्रवण सिमरन करने की शक्ति सबकी अलग अलग है, सबकी सोच भी अलग अलग है, और सबका मार्ग भी अलग अलग है। जितने भी महापुरुषों की कथा हम पढ़े, वो किसी सबकी सिमिलैरिटी नहीं है कि नहीं हाँ एक ही पथ है, एक ही पथ है नहीं। तो इसीलिए ये हम सबके लिए, और जो एसेंस की जो बात राहुल अंकल का ये जो चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, और इसमें यही बात हमें समझाई जा रही है कि ज्ञान जो है वो सीमाबद्ध है, जबकि भक्ति जो है वो असीम होती है। और वो पंक्तियां याद आती मुझे अमीर खुसरो की, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में हमें समझाया कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो बुरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी कि जो भक्ति में प्रेम रस में डूब जाता है ना, पार तो वही लगता है। जो घबरा के तैर के उसको पार करने की कोशिश करता है, वो तो फिर बेकार साबित होता है। तो ये बहुत ही सुंदर बातें, और गुरुजी ने भी हमारा जो मार्ग, गुरुजी तो हम सब जानते हैं, कोई प्रवचन तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने समझाया वो समझाया, अपनी जो संगत उन्होंने इकट्ठी की, और उस संगत को जो प्रारूप उन्होंने दिया कि आओ बैठो भगवान की शरण में बैठो, कुछ सुनो, अपनी अपनी मत लगाओ। तो वो सुना करके हमें उन्होंने इतने प्यारा तैयार किया है। और आज भी जब हम अभी मैं जैसे सुन रहा था, उषा आंटी जब बोल रही थी, तो वो जैसे ही गुरुजी का नाम, या नाम तो नहीं, मतलब गुरुजी जब उनके मुख से निकलता था, तो वो जो रस गुरुजी हमें दे गए ना हमारी जेव्या को, वो रस टपकता है, क्योंकि गुरुजी कहते ही, और देखिए गुरुजी की कितनी मतलब महानता है कि वो केवल और केवल गुरु जी कह गए, कोई नाम उन्होंने नहीं रखा, कोई अलग से पंथ नहीं बनाया, कोई अलग से हमें ये नहीं मार्गदर्शन नहीं किया, सिर्फ एक ही मार्ग बताया, भक्ति मार्ग। रिलीजन तो बहुत से हैं, पंथ भी बहुत से हैं, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही है ना, निराकार एक ओंकार या एक ओम के पास पहुंचने का। वो तभी संभव है जब हमारे मन में उनके प्रति वो जो ज्योत जला के गए हैं, जो कहते थे कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ, वो ज्योत जला गए। और हमारे को जो मार्गदर्शन भी किया गुरु जी ने कि ज्योत जलाया करो घर में, जितनी बार हो सके, 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम, जितना भी हो सके ज्योत जलाएं, और उसके पास बैठें थोड़ी देर, उनका नाम का उच्चारण करें, जैसे जैसे ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम अनेकों घंटे मेडिटेशन में वो कर सकें तो करें, कोई मतलब वो तो बहुत ही, वो एक मार्ग है, लेकिन ध्यान लगाने से अभिप्राय उनका ध्यान करें, उनसे बात करने की चेष्टा करें। बात पहुंचती है उन तक, तो पहुंच जाती है, उनकी बात हमारे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारा भांडा अभी वो फिल्दी चीजों से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही गुरुजी ने जिसे कहें कि हमारा मार्ग बहुत सरल किया है, और इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम अब गुरुजी ने जो हमें जो इकट्ठा करना शुरू किया, वो इसलिए कि हम पीड़ा में हैं, जितने भी लोग, क्योंकि उनको पता है कलयुग का समय है, और ये ऐसे आसानी से रब के पास आएंगे नहीं, तो इनकी पीड़ा कष्ट हरें, यही उन्होंने साधन बनाया। और उसके जरिए देखिए हम कितने लोग इकट्ठे हो गए। मैं अगर अपनी भी बात करूं, या हम में से जितने भी, अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ देम, मे बी मोर देन 99%, हम कैसे गए गुरु जी के पास? भाई मेरी ये पीड़ा है, मेरी वाइफ की कुछ तकलीफ है, मेरे बच्चों को कुछ पीड़ा है, तो किसी ने कहा कि आइए हमारे गुरुजी हैं, वो उनके यहाँ जाकर के बड़े बड़े लोगों की कैंसर ठीक हो गए, ब्लड प्रेशर ठीक हो गए, शुगर ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो। तो हम भी चुपचाप चले गए, भाई सब जगह देख लिए, इसलिए गुरुजी कहते थे कि किंतु परंतु आ गए, भाई चलो देख ले। मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर कोई मुझसे उस समय, जब मैं गुरु जी के बारे में जब मुझे पता लगा, और मेरी, आप लोगों ने वो सत्संग सुना ही हुआ है कि मेरी वाइफ काफी पीड़ा में थी, तो
उनके निवारण के लिए हमको वो लेके गए गुरु जी के पास। तो मुझे नहीं, मैं अपनी मतलब सोच ऐसी नहीं थी तब कि कोई मुझसे ये कहता कि आइए हमारे गुरुजी हैं, आप उनके पास बैठिए, वो वहां भक्ति रस मिलता है, आध्यात्म रस मिलता है। तो मुझे नहीं पता मेरा क्या रिएक्शन होता। तो इसलिए संगत जी, अब देखिए, गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस हम सब मिस करते हैं, लेकिन उससे बड़ी है उनकी डिवाइन प्रेजेंस। गुरु हर तरह का मोह हमसे छुड़ाना चाहते हैं। वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस का, अपने फिजिकल बॉडी का मोह भी हमसे छुड़ा के चले गए। हम तो इसीलिए हमको दुख ज्यादा हुआ क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान था ही नहीं कि अरे गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। जब उषा आंटी को उन्होंने बड़े मंदिर में ये दर्शन करा दिए कि आधे शिव और आधे गुरुजी दिख रहे हैं उनको, तो अब इससे बड़ी तो और क्या बात हो सकती है। तो संगत जी, यही मतलब अब जैसे जैसे गुरुजी का एहसास बढ़ रहा है, वो भी गुरुजी की कृपा से है, तो अब हम जान पा रहे हैं कि गुरुजी को, गुरुजी से प्रेम करना ही सबसे बड़ी दात है उनकी। और वो दात, वही दात हमको उनसे मांगते भी रह जाना चाहिए। अब चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो शिव पुराण हो। उसमें कहा ना कि गुरु के दरबार में या ईश्वर के दरबार में 4 तरह के भक्त जाते हैं। एक आर्त होते हैं, और हम सब तो आर्ती होकर के गए। फिर अर्थार्थी कि अच्छा भाई गुरुजी, मेरा मकान नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। फिर ज्ञानी कि भाई चलो थोड़ी बहुत जिज्ञासा हो रही है, देखें तो सही अब क्या होता है। और फिर अंत में जो सच्चा, जो प्रेम करने वाला है, प्रेमी भक्ति, वही। तो इस स्टेज पर हमको पहुंचना है, इस स्टेज पर हमको जाना है। और व्हेन आई से के ज्ञान, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग ज्ञान, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ज्ञान का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज्ञान से भक्ति आती है और अक्सर भक्ति से ज्ञान आता है। तो ये हमारी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। जैसी जैसी हमारी अवस्था होगी, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम वाद विवाद में ना पड़े। केवल ज्ञान यही है कि हाँ, ईश्वर होता है। अब ये जो महादेव का एक स्वरूप बनाया, ये है तो इमेजिनरी ना, कि गले में सर्प हैं, रुद्राक्ष माला, क्योंकि किसी ने सुना और वो स्वरूप बना दिया। तो उसके पीछे जो भावार्थ है कि वो विष को कंठ में रखते हैं, ना नीचे जाने देते हैं, ना ऊपर उठाते हैं। और वो विष उन्होंने ग्रहण भी किया तो हम सब भक्तों का कल्याण करने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए। तभी तो एक एक चीज की अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग महत्व है। हम जैसे जैसे इस मार्ग पर चलते जाएंगे, हमें बहुत कुछ हासिल होता जाएगा। बस हमें यही डिस्टिंग्विश करना है कि मार्ग में पड़े हुए जो प्रेशियस स्टोन्स हैं वो हम अपने झोले में भरते जाएं, और जो हमारे झोले में ऑलरेडी कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं उनको डिस्कार्ड करते जाएं, या और कंकड़ पत्थर ना भर लें। तो यही मुझे लगता है राहुल अंकल की जो भावना है इस पुस्तक के प्रति, क्योंकि गुरुजी ने उनको कहा कि मेरे बारे में भी ये लिखेगा। तो वो गुरुजी का कहा हुआ वचन साकार किया उन्होंने। तो बहुत बहुत आभारी हैं हम राहुल अंकल आपके, कि आपने गुरुजी का कुछ तत्व हमको, मतलब काफी कुछ इसमें है, और वो हमारी बुद्धि अब कितनी है, हम उसको कितना ग्रहण करते हैं, वो तो एक अलग बात है। तो बस यही हमें इसको ग्रहण करते चलना है। बाकी रही दुख और क्या कहते हैं, पीड़ा की बात, तो पीड़ा तो ठीक है, शरीर है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, मौसम बदलेगा तो कुछ घटनाएं होंगी, कहीं हम चलते चलते गिर जाएंगे तो दुख दर्द, तो पीड़ा होगी। लेकिन दुख जो है वो हम अपने आप ही समेटे रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन चीजों का दुख मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा है, इस बात का भी दुख होता है हमें। तो ये सब भ्रांतियां हमें गुरु जी की कृपा से इनको दूर करना है अपने मार्गों से। बस यही मुझे लगता है कि मुझे और कुछ ज्यादा इसमें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि राहुल अंकल ने हम सब के लिए बहुत सरल भाषा में ये सब लिखा है।
तो राहुल अंकल, अब मैं आपको सौंपता हूँ टू सम अप द एंटायर थिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सब जुड़े हुए सारे संगत को प्रणाम। आज के विषय पर काफी अच्छे ढंग से चर्चा हुई है। खास करके उषा आंटी, अभी सियाटल में मिडनाइट होगा या मोर देन दैट? अंकल, पर गुरु जी के देखिए, गुरु जी वॉज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और मुझे लगता है कि गुरु जी की जब चर्चा हो तो चाहे वो दिन हो रात हो, सब समान सा हो जाता है। So thank you very much. And the way you related your personal experience and व्यक्तिगत अनुभव गुरु जी के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे सत्संग के साथ इस चैप्टर को समझाए, ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी उसी टाइम जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि एम्पायर स्टेट में बैठ के जैसे आपको महसूस हो रहा था, I could go back to that period and I was reliving that period in Empire State. So it was a beautiful exposition. इस चैप्टर के बारे में और जो भी बताया गया इसमें, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी सही ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन 2 सेशन में हो चुकी है। बट थोड़ा बहुत I'll add to that. इंटर रिलीजियस हार्मनी जो बताया गया, क्योंकि ये खास तौर पे समटाइम्स क्या हो रहा है, some people they think it is like they themselves perceive Guruji as belonging to particular community or particular place or particular religion, because sometimes people only emphasize that part. अगर बताया गया कि शिव पुराण पढ़ना है, बहुत अच्छे ढंग से दोनों गोपाल अंकल और उषा आंटी भी बताया कि शिव पुराण पढ़ने का क्या मतलब था, क्या मकसद था। नहीं कि irrespective of the religion or path anybody is following, he should bound to read शिव पुराण। ये डिस्टिंक्शन मैं करना चाहता हूँ। रिलीजियस टेक्स्ट ले लीजिए, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट है, उसी में भी कुछ अच्छी चीज होता है। शिव पुराण पढ़ने का कुछ मकसद जो है कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दी शिव कौन है, महाशिव या शिव कौन है, व्हाट इज द शिव तत्व, इस डिटेल्स थोड़ा अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए या जानने के लिए गुरुजी बताए थे कि इंस्टेड ऑफ जस्ट ओके यू हैव भक्ति भाव से साथ साथ थोड़ा बहुत ज्ञान भी लेना है। तो ये सारे जो टेक्स्ट होते हैं ये कुछ प्रोवाइड करता है। बट रिलीजियसली इफ यू से कि मैं हर रोज 2 चैप्टर या 1 चैप्टर शिव पुराण पढ़ लिया, बाकी कुछ नहीं, वो फिर वो थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाती है। इसलिए ये जो गुरुजी के स्पिरिचुअल एसेंस जानने के लिए उनके सारे कहना जो कहे हैं, लोगों को सत्संग भी किए हैं, जैसे पर्सनल सत्संग में लोग बता रहे हैं, और भी उनके छोटे मोटे वाणी भी है, उनको ऑब्जर्व करके लोग जो भी, उससे फिर होलिस्टिक मैनर में देखना चाहिए। ये नहीं कि एक बताया कि 1-2 सत्संग में या 1-2 फंक्शन में गुरुजी आरती किए, अलाउ किए थे कि आरती करना है। इट शुड नॉट बी रिजिडली सेड दैट ओके आरती ही किया जाएगा। यही कहने का मकसद है कि रिजिडिटी
और इस टाइप का सिस्टम में गुरुजी आपको ऐसा टिपिकली जो होता है, लोग आपको फंसा के रखते हैं कि आप एक डेफिनेट पाथ के थ्रू जाओ ताकि आप हायर स्पिरिचुअल लेवल अटेंड करोगे। वो नहीं गुरुजी बताए। और एग्जाम्पल दिया गया कि गुरुजी के सिस्टम में हर एक बंदा एक जैसे है, एंड बेसिक प्रिंसिपल था बताया गया इस चैप्टर में। अदरवाइज गुरुजी भी बताएं कि रब तुम्हारे अंदर है, यू आर पार्ट एंड पार्सल, यू आर द स्मॉल स्पार्कल ऑफ द God, that's energy or light. So everybody has that. So why you feel that you are superior to somebody or you are inferior to somebody like that? So that is the basic principle, that we have come from the same source and we are the same and love God. If you love God, then how can you hate the next person sitting to you? If he is a representative of God, then how you will distinguish? That is the by way of this Sangha, sitting together, sharing with poor people, unknown people, you may not knowing each other. Guruji was a demonstrating. Guruji बोलते थे कि मैं practical करा के दिखाता हूँ. He was not speaking, he was not giving a speech कि everybody is the same, everybody has the same sparkle of God within them. But by demonstrating, by making you sit together, and आपको महसूस कराता था कि there is no distinction. जैसे सुशांत ने बताया कि जात पात रिलीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु के सामने, गॉड के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता. So that was the beautiful thing we have learned from our Guruji. And it is a very, very beautiful world. When we talk about Guruji, we really relate to those scenes, relive the scene of Guruji, then we understand how beautiful it was. So let us inculcate those values, and we also demonstrate in our own daily life those teachings. Coming back to humility and arrogance, including spiritual arrogance, beautifully it has been said. I need not repeat those things. And when we come to Shiv Puran, a little bit I have described in this chapter, the unity and what is God, why we believe in God, why spiritual, what is the essence of spiritualism, God का essence क्या है, वही रुद्र संहिता में जो चैप्टर बताया गया उससे लिया गया. People are now realizing, even the scientists who are looking into the fundamental principle of unity in physics, they are surprised that the same principles are written in our own text, including Shiv Puran. The unity of everything, whatever in the universe, comes from the one source. And before the creation, the kind of situation was prevailing. The unmoved, that is you can say, the Paramatma, the Super Soul, or Mahashiv, whatever name you can give it. Then it was by his own will that the creation started. And then God takes care of the creation. And ultimately, there is a resolution. There is a system which is the cosmic principle. By the cosmic principle, some things get destroyed. People call it a constructive destruction. For again regeneration, the universe is recreated. So these principles have already been described in Shiv Puran, the chapter we have mentioned. This has been the essence of our great spiritual tradition, and in many other books also it has been written, not only Shiv Puran. And this is what now people in the modern science are also trying to find out, the universal principles. So with this, I think I need not add anything more.
that will, I think, unnecessarily prolong the discussion. So thank you very much, Usha Aunty ji, Gopal Uncle ji, and uh, Vasan Uncle and his team, the multilingual satsang team, the Sangat who are present today, who are listening to today's discussion. So this is the end of this chapter 11, and the next session we will start chapter 12. That is the social aspect of spiritualism of Guruji, because we talked about the spiritual essence, but as a social, as a you can say spiritual guru, he also has not has taken care of our social life. He has shown how you should conduct yourself in the society. So that part we'll be discussing in the next chapter. The reader will be Gurjot Kaur Aunty, and the interventionist again will be Gopal Uncle. So thank you very much. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you, Usha Singh Aunty. Thank you, Gopal Sethi Uncle. And thank you, Raul Uncle, for such a blissful and soulful reading, narration, as well as analysis of the today's chapter. Sangaji, we will take Agya from Guruji Maharaj. Shukrana, Guruji.